Hello learners, welcome back to your own channel that is Learn to Lead Tutorials UGC Online Mantra. This is your trainer Ashwarya Seth and I want to say big thank you to all of you for your love and support which you are giving to this channel. You all are the backbone and strength of this channel and this educational platform where students from all over India are learning the complete coachings of various competitive exams like UGC NET, CTET, PTET, KVS, NVS, Master Cadre, ETT, NTT, BEd, MEd, etc. 100% free of cost. So you all are liking and sharing our videos regularly and giving very inspirational comments to this revolutionary channel. This is really superb and commendable on your part. We feel so motivated due to this extraordinary response. The main motive of starting of this sensational channel is to impart free of cost complete coachings of various competitive exams so that the students all over India who can't afford these exclusive courses can also get quality education absolutely free of cost and can make their dreams come true. And I hope in the coming future this channel will flourish to each and every part of India from your cooperation and support. So this is a very new channel. I started this channel on 1st April 2020. So students, till now complete and full-fledged topics of research aptitude, teaching aptitude and communication of UGC paper 1 have been done. And on the other hand, the different theories of child development pedagogy of CTET, PTET, KVS and NVS exams have also been done completely. So if anybody missed any kind of video, kindly go through it because here each and every video is very important and vital. So the topic of ICT, that is 8th unit of UGC paper 1 is going on, in which we are covering each and every content one by one. So I started ICT this week and we are covering this topic in a chronological manner. So in today's video, I will teach you the basics of computer part 2. Basics of computer part 2. So let's start with the presentation. सो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है. सो सॉफ्टवेयर इज़ द कलेक्शन of computer programs and related data that provides the instructions for telling a computer what to do and how to do. कंप्यूटर को क्या काम करना है, कितने टाइम पे करना है, कैसे करना है, ठीक है जी. ये सारा एक प्रोग्राम्स के थ्रू उसको पता लगता है कंप्यूटर्स को. और जो प्रोग्राम्स हैं, ठीक है जी, और वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कंप्यूटर को ये बताती हैं कि कंप्यूटर ने कौन सा काम जो है वो किस तरह से करना है, ठीक है जी. सो सॉफ्टवेयर आर बेसिकली दिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड इट्स डॉक्यूमेंटेशन दैट टेल्स अ कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क, ठीक है जी. यहाँ पे ये बिल्कुल इंटेंजिबल है. जो सॉफ्टवेयर्स हैं, यो जो प्रोग्राम्स हैं या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, रिकमेंडेशंस होती हैं, डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं, वो हम सिर्फ देख सकते हैं लेकिन उनको टच नहीं कर सकते बिकॉज वो इंटेंजिबल है, वो फील कर सकते हैं. तो जो भी इंटेंजिबल प्रोसीजर्स हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, डाटा है, इंफॉर्मेशन है, ठीक है जी, और जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, ये जो है वो प्रोग्राम प्रोसीजर्स एंड एसोसिएटेड डॉक्यूमेंटेशन होती हैं जो कंप्यूटर को प्रोसेसिंग में जो है मदद करती हैं. सो वी कैन ऑल्सो से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रेफर्स टू वन और मोर कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड डाटा हेल्ड इन द स्टोरेज ऑफ द कंप्यूटर फॉर सम पर्पसेस. तो यहाँ पे क्या है, जो भी हमने कंप्यूटर से काम करवाना है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू ही करवाएंगे, ठीक है जी. सो विदाउट सॉफ्टवेयर कंप्यूटर इज़ जस्ट ओनली अ बॉक्स, ठीक है जी, कि सॉफ्टवेयर नहीं है, कुछ अंदर कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस नहीं है, तो वो बॉक्स पड़ा हुआ, उसकी कोई यूसेज नहीं होती है. तो सॉफ्टवेयर जो है बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं. सिस्टम सॉफ्टवेयर फर्स्ट टाइप है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सेकंड टाइप है. ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको वही बता रही हूँ, क्रक्स बता रही हूँ कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं. सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के अंदर इंस्टॉल्ड होता है और उसको ऑपरेशनल और ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी बोलते हैं. सो consist of operating system and all the utilities that enable the computer to function. अब यहाँ पे क्या है, ये पूरा का पूरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और ये दो तरह की चीज़ों को कंसिस्ट करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस ऑल दी यूटिलिटीज़. सारा का सारा जो भी प्रोसीजर्स हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं और जो इंटरफेस हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, उसको जो उसकी मदद से जो है वो कंप्यूटर ऑपरेट करता है. सो इट actually controls the hardware so that application software can perform any action or task.
अब अभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम अभी पढ़ते हैं आगे जाके, लेकिन ये क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, इट कंट्रोल्स दी हार्डवेयर मूवमेंट्स, हार्डवेयर को किस तरह से चलाना है, बिकॉज हार्डवेयर क्या है वो भी आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या है कि इस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गया, कंपाइलर हो गया, लोडर हो गया, लिंकर है, इंटरप्रेटर है, ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, इट कंट्रोल्स एंड एनहांसेस द प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज ऑफ द कंप्यूटर। सो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड बाय द कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर इन लो लेवल लैंग्वेज, मीन्स मशीन लेवल लैंग्वेज। लो लेवल कौन सी है, मशीन लेवल लैंग्वेज, जो कंप्यूटर को समझ आती है। तो ये कौन डेवलप करता है, ये हम और आप डेवलप नहीं करते हैं, जहाँ से हम कंप्यूटर लेते हैं, ठीक है जी। और ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलप करती हैं और कंप्यूटर्स के अंदर डालती हैं, वही मैन्युफैक्चर करती हैं, वही कंप्यूटर्स के अंदर इंस्टॉल करती हैं। और जब हम कंप्यूटर्स लेते हैं, पीसीज लेते हैं, लैपटॉप्स लेते हैं, तो हमें वो जो है इनबिल्ट जो है वो मिल जाती है साथ ही उसके, ठीक है जी। सो वो जो इनबिल्ट है, जो बिल्कुल इंस्क्राइब्ड है, जो मैन्युफैक्चरर्स जो है सॉफ्टवेयर के वो इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करके देते हैं हमें कंप्यूटर में, वो क्या है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। उनको हम कोई चेंज नहीं कर सकते, उनको हम कोई एडिट नहीं कर सकते, सिर्फ एज इट इज़ हमें मिलता है, ठीक है जी। और हम उसको जो है वो सारे कंप्यूटर्स को हैंडल करता है, कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, सारी एक्टिविटीज़ को जो है वो गवर्न करता है, ठीक है जी। सो ये क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है जी। अब इसी में क्या है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, this is the integral part of the system software. So operating system is a program which acts as a interface between the user and the hardware. बिल्कुल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं, जो एक इंटरफेस है, एक लिंक है, किसके बीच में, यूज़र के बीच में, और जो है वो कंप्यूटर के बीच में या कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में, ठीक है जी। सो ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो, अब देखिए कंप्यूटर आपका पड़ा हुआ है लेकिन उसमें विंडोज़ एक्सपी ना हो, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो कंप्यूटर कैसे चलेगा, चल नहीं सकता। तो ये सारे क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स ही होते हैं, ठीक है जी। और सिस्टम सॉफ्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते हैं, ठीक है जी। और इसमें जैसे फॉर एग्जांपल अब लाइनक्स है, माइक्रोसॉफ्ट है, विंडोज़ एक्सपी है, ठीक है जी, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं और ये इनबिल्ट आते हैं और ये हमें एज इट इज़ जो है वो चलाने पड़ते हैं कंप्यूटर में, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ बिल्कुल ऑपोजिट टू दी सिस्टम सॉफ्टवेयर, बिकॉज सिस्टम सॉफ्टवेयर तो इंस्क्राइब्ड होता है, इंस्टॉल होकर हमें मिलता है, ठीक है जी। लेकिन जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये हम अपनी नीड्स एंड जो है रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली हम खुद जो है वो इंस्टॉल करते हैं। सो एक्चुअली द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स दैट आर डिजाइन टू मेक यूजर्स मोर कंफर्टेबल एंड प्रोडक्टिव टू असिस्ट पर्सनल टास्क। द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज प्रेजेंट ऑन द कंप्यूटर हार्ड डिस्क। अब क्या करते हैं हम खुद जो है वो उसको इंस्टॉल करते हैं, ठीक है जी। अब ये कहाँ इंस्टॉल करेंगे, ये हार्ड डिस्क में इंस्टॉल करेंगे, ठीक है जी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन ऑल्सो बी स्टोर्ड ऑन CDs, DVDs, फ्लैश और की चेन स्टोरेज डिवाइसेस, किसी भी तरह की स्टोरेज डिवाइसेस में, CDs में, DVDs में, या फिर जो है हार्ड डिस्क में हम खुद इंस्टॉल, जो चीज़ हम खुद इंस्टॉल करते हैं, ठीक है जी, एप्लीकेशंस जो हम खुद इंस्टॉल करते हैं उनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। सो ये बिल्कुल इट इंक्लूड्स द प्रोग्राम्स दैट डू रियल वर्क फॉर यूज़र। यहाँ पे हमारी जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से जो है हम एप्लीकेशन जो है वो यूज़ करते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर। मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, सिस्टम सॉफ्टवेयर को बोलते हैं इंटरनल सॉफ्टवेयर, जिसको हम कभी बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते, वो इंटरनली इंस्क्राइब्ड होकर मिलता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बोलते हैं एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर, जो हम अपनी रिक्वायरमेंट्स और नीड्स के हिसाब से एक्स्ट्रा जो है वो लोड करते हैं कंप्यूटर में। जैसे कि फॉर एग्जांपल पेरोल सिस्टम्स हैं, इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम्स हैं, मैनेज स्टूडेंट्स डाटाबेसेस हैं, वर्ड प्रोसेसर्स हैं, स्प्रेडशीट्स हैं, डाटाबेसेस हैं। ये सारे क्या हैं, ये कंप्यूटर में इनबिल्ट नहीं आते हैं, ये हम खुद इंस्टॉल करते हैं, जिस चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट है हम इंस्टॉल कर सकते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की दो अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें जैसे फॉर एग्जांपल DBMS आ गया, ठीक है जी, मल्टीमीडिया आ गया, इस तरह से जो जनरली मतलब जो हर कोई यूज़ कर रहा है आजकल, जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हर कोई, हर किसी की रिक्वायरमेंट है, हर कोई यूज़ कर रहा है, जनरली हर जगह यूनिवर्सल है, यूज़ हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल DBMS है,
ठीक है जी, मल्टीमीडिया हैं। अब दूसरी बात करते हैं दूसरी टाइप की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जिसमें स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आते हैं। स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जैसे फॉर एग्जांपल पेरोल है, बिलिंग सिस्टम है। अब हर किसी का पेरोल सिस्टम अलग होता है, ठीक है। किसी एमएनसी कोई भी बैंक है उसका पेरोल सिस्टम अलग होगा, किसी एमएनसी का पेरोल सिस्टम अलग होगा, उसका सॉफ्टवेयर अलग होगा, किसी स्कूल का किसी ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग सॉफ्टवेयर होगा। तो वो क्या है, वो स्पेसिफिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं जो अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम खुद ही डेवलपर से बनवा के जो है इंस्टॉल करते हैं। तो ये क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ दैट which we require as per our requirements, we install ourselves, and system software is installed by the manufacturers or the developers of the software, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या है, अब ये सॉफ्टवेयर आपको क्लियर हो गया। हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर कुछ भी नहीं है, वो जो सॉफ्टवेयर है वो प्रोग्राम्स है। हार्डवेयर क्या है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जो है कंप्यूटर के साथ जो फिजिकली अटैच्ड है, ठीक है जी। द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, मशीनरी एंड इक्विपमेंट, दे ऑल बिलोंग टू द हार्डवेयर। यू कैन फील, यू कैन टच, यू कैन सी, ठीक है जी। ये टेंजिबल रिसोर्सेज होते हैं। अब हार्डवेयर भी दो तरह के होते हैं, इंटरनल हार्डवेयर एंड एक्सटर्नल हार्डवेयर। इंटरनल हार्डवेयर जैसे फॉर एग्जांपल मदरबोर्ड्स हैं, हार्ड ड्राइव्स हैं, रैम्स हैं, ये इंटरनल हार्डवेयर है। लेकिन हम इसको पकड़ तो सकते हैं ना, रैम की चिप होती है उसको पकड़ सकते हैं, मदरबोर्ड्स हैं, हार्ड ड्राइव्स हैं, ये पकड़ सकते हैं, ठीक है जी। तो ये टेंजिबल है, लेकिन इंटरनली जो है वो फंक्शन करते हैं, वो इंटरनल हार्डवेयर हो गए। एक्सटर्नल कौन से हो गए, प्रिंटर्स हैं, स्कैनर्स हैं, कीबोर्ड्स हैं, माइक है, मॉनिटर्स हैं, ये एक्सटर्नल हार्डवेयर होते हैं, ठीक है जी। सो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या है, जो सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं जिससे कंप्यूटर जो है वो चलता है। हार्डवेयर क्या है, जो फिजिकली जो है वो टेंजिबल एसेट्स हैं जो कंप्यूटर के साथ कॉन्फ़िगरेशन में होती हैं। सो यहाँ पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट जो है वो कैटेगरी में चलते हैं जहाँ पे हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूजीसी में और डिफरेंट एग्ज़ाम्स में, जो कंप्यूटर रिलेटेड एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें जो है ये टाइप्स ज़रूर आती हैं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स पे ज़रूर क्वेश्चन आता है। तो 3 तरह की बेसिक टाइप्स होती हैं, ठीक है जी। सबसे पहले क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी, फंक्शनैलिटी के बेसिस पे फर्स्ट हम बाइफिकेशन करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स की। इसमें क्या है, फंक्शनैलिटी के बेसिस पे हमारे कंप्यूटर्स जो हैं वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं, एनालॉग है, डिजिटल है, हाइब्रिड है। तो हम ये 1 बाय 1 करते हैं फंक्शनैलिटी के बेस पे। एनालॉग कंप्यूटर्स, सो एनालॉग कंप्यूटर्स आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये क्या हैं, दीज आर दैट कंप्यूटर्स विच यूज़ दिस एनालॉग सिग्नल्स टू ऑपरेट, ठीक है जी। सिग्नल्स के, एनालॉग सिग्नल्स के थ्रू डाटा ट्रांसमिट करते हैं और जो है वो जॉब ओरिएंटेड होते हैं, कैन परफॉर्म सेवरल मैथमेटिकल ऑपरेशन साइमल्टेनियसली। जैसे आपने देखा होगा, मैं आपको जैसे एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे स्पीडोमीटर्स हैं, सीज्मोग्राफ्स होते हैं, थर्मोमीटर्स होते हैं, एनालॉग क्लॉक्स होती हैं, टायर प्रेशर गॉजेज होते हैं, ये सारी क्या है, एनालॉग कंप्यूटर्स। इनकी जो मशीनरी है, ठीक है जी, इनकी जो प्रोसेसिंग है, मशीनरी है, वो एनालॉग सिग्नल से चलती है। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे हैं, ये भी एक मशीन है जो एनालॉग सिग्नल से चल रही है, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या है कि कंप्यूटर्स जो हैं, analog means continuity of associated quantity, just like an analog clock measures time by means of the distance traveled by the hand of clock around a dial। मतलब जो भी हम काम कर रहे हैं वो एनालॉग सिग्नल्स की टाइम कंस्ट्रेंट्स में रहकर काम कर रहे हैं, एनालॉग सिग्नल्स के थ्रू चल रहे हैं, वो एनालॉग कंप्यूटर्स हैं। और यहाँ पे क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको पहले भी बताया, कार में स्पीडोमीटर्स लगे होते हैं, वो एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं। सीज्मोग्राफ्स होते हैं जिससे हम जो है लैंड मेजरमेंट्स करते हैं, जो अर्थक्वेक्स आते हैं उनको मेजर करते हैं, ठीक है जी। फिर आगे आपके एनालॉग क्लॉक्स आती हैं, थर्मोमीटर्स होते हैं, ये सब में कौन सी टेक्नोलॉजी है, एनालॉग कंप्यूटर्स की टेक्नोलॉजी है, ठीक है जी। तो एनालॉग कंप्यूटर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि ये फास्ट होते हैं, ये बट ये ज़्यादा रिलायबल नहीं होते हैं। सो अगर ये ज़्यादा रिलायबल नहीं है तो अब इनके ज़्यादा रिलायबिलिटी में नहीं होने की वजह से जो है डिजिटल कंप्यूटर्स जो हैं वो आगे एडवांस टेक्नोलॉजी हम लेके आए हैं, डिजिटल कंप्यूटर्स। एनालॉग कंप्यूटर्स में कुछ कमियां थी इसलिए डिजिटल कंप्यूटर्स बने। सो यहाँ पे क्या है, ये बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं ऑपरेट करने में, यूज़ करने में। सो बट ये कंप्यूटर्स ईजी टू डेवलप होते हैं और इनमें क्या है, स्मॉल मेमोरी होती है, इतनी ज़्यादा रिलायबल नहीं होते हैं, ठीक है जी। अब एनालॉग कंप्यूटर्स में कुछ कमियां थी इसलिए डिजिटल कंप्यूटर और एडवांस लेवल पे बने। सेकेंड नंबर पे क्या आए हैं, एनालॉग के बाद डिजिटल कंप्यूटर्स आए हैं। और डिजिटल कंप्यूटर्स में क्या होता है, ये जो कंप्यूटर्स हैं दे वर्क ऑन दी बाइनरी नंबर सिस्टम।
याद रखिएगा, कंप्यूटर में ये वाला क्वेश्चन भी आया था कंप्यूटर के एग्ज़ाम में यूजीसी में कि कौन से जो कंप्यूटर्स हैं वो 0 और 1 की जो है बाइनरी नंबर सिस्टम के ऊपर जो है वो काम करते हैं, दैट इज़ डिजिटल कंप्यूटर्स। ठीक है जी। सो कैन परफॉर्म कैलकुलेशंस लॉजिकल ऑपरेशंस विद क्वांटिटीज रिप्रेजेंटेड एज डिजिट्स यूजुअली इन बाइनरी नंबर सिस्टम 0 and 1। कंप्यूटर कैपेबल ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स बाय प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन एक्सप्रेस इन द डिस्क्रीट फॉर्म। यहाँ पे क्या है, डिस्क्रीट फॉर्म में, डिस्क्रीट मीन 0 और 1 बाइनरी नंबर सिस्टम, तो डिस्क्रीट फॉर्म में होता है कि 0 और 1 की फॉर्म में। अब ये क्या है, इनका नाम क्या है, डिजिटल कंप्यूटर्स। तो ये डिजिटाइज्ड होते हैं, ऑपरेशंस करते हैं, टेक्निकल करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं, और ये क्या करते हैं, बिल्कुल साइमल्टेनियसली जो रिजल्ट है वो प्रोड्यूस करते हैं। डायनामिक सिस्टम्स होते हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल इसमें एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, इसमें जैसे फॉर एग्जांपल IBM पीसीज हो गए, एप्पल मैकिनतोश हो गए, कैलकुलेटर्स हो गए, डिजिटल वॉचेज़ हो गई जो आजकल हम यूज़ कर रहे हैं, डिजिटल वॉचेज़, उसमें भी कौन सा सिस्टम है, डिजिटल कंप्यूटराइज सिस्टम होता है जो डिजिटल वॉचेज़ हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये आजकल एडवांसमेंट हो गई है। एनालॉग कंप्यूटर पुराने हो गए हैं लेकिन अब तक यूज़ तो होते ही हैं, लेकिन उसकी नई टेक्नोलॉजी क्या है, डिजिटल कंप्यूटर्स। ठीक है जी। तो जैसे फॉर एग्जांपल अब डेस्कटॉप है, पीसी है, ये भी डिजिटल कंप्यूटर्स में ही आता है, डिजिटल वॉचेस भी आती हैं। तो ये सब डिजिटल कंप्यूटर्स हैं। इसमें क्या है, करेक्टरिस्टिक्स क्या है, ईजी टू यूज़ है। तो ह्यूमन बींग लाइक टू यूज़ डिजिटल कंप्यूटर्स आर रिलायबल, दे हैव बिग मेमोरी देन द एनालॉग कंप्यूटर्स, वर्किंग स्पीड ऑफ डिजिटल कंप्यूटर इज स्लोअर एज कम्पेयर टू एनालॉग। हाँ, यहाँ पे क्या है, इन्होंने बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करनी होती हैं, तो इनकी जो कैलकुलेटिव स्पीड है, द स्पीड ऑफ डिजिटल कंप्यूटर इज स्लोअर देन एज कम्पेयर टू एनालॉग कंप्यूटर्स। ठीक है जी। तो थोड़ी सी स्लो होती है। और दिस कंप्यूटर कैन फर्दर डिवाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरी सच एज पर्सनल कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनिंग की हम अभी कैटेगरी कर रहे हैं। फर्स्ट कैटेगरी में ये थर्ड सब पार्ट है, हाइब्रिड कंप्यूटर। तो यहाँ पे क्या है, इट इज़ दी combination of both analog and digital both computers. So hybrid computers क्या है, the combined technology used of both digital and analog signals is in the hybrid computer। जैसे कि आपने लैपटॉप्स हैं, आपके नोटबुक्स हैं, ठीक है जी, इसमें जो है हाइब्रिड कंप्यूटर्स की जो है टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए ये यूज़ होते हैं। ठीक है, डिफेंस जैसे आर्मी है, डिफेंस में यूज़ होते हैं, रडार सिस्टम में यूज़ होते हैं। और यहाँ पे क्या है कि जैसे आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में डायलिसिस मशीन होती है, ECG मशीन होती है, जहाँ पे एनालॉग सिग्नल्स भी आ रहे होते हैं अप्स एंड डाउन्स में, साथ में न्यूमेरिक वैल्यूज़ भी आ रही होती हैं। तो न्यूमेरिक वैल्यूज़ कौन सी होती हैं, डिजिटल कंप्यूटर्स की। एनालॉग सिग्नल्स किसके होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर्स के। तो दोनों टेक्नोलॉजीज का मिक्सचर किस में है, हाइब्रिड कंप्यूटर्स में। तो इसमें सिग्नल्स भी चलते हैं और क्या चलते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ भी चलती हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड हाइब्रिड कंप्यूटर्स। सो ये सबसे ज़्यादा एडवांस है इस कैटेगरी में, और दे आर वेरी वेरी एक्यूरेट एंड दे प्रोवाइड एक्यूरेट रिजल्ट्स। फास्ट होते हैं, स्पीडी होते हैं, ईजी टू मूव होते हैं, पोर्टेबल होते हैं, वेरी चीपर होते हैं और बहुत ही एडवांस होते हैं। ठीक है जी। सो ये फर्स्ट बेसिस ऑफ कंप्यूटर क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर खत्म हुआ। सेकेंड क्लासिफिकेशन किस बेस पे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, स्पीड एंड परफॉर्मेंस। इस तरह की अगर हम क्लासिफिकेशन करें कंप्यूटर्स की, तो 4 तरह के कंप्यूटर्स जो हैं वो हम देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो ये हम 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। सबसे पहले स्टडी करते हैं पर्सनल कंप्यूटर, विच इज़ ऑल्सो नोन एज माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर को ही पर्सनल कंप्यूटर्स बोलते हैं। और माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं, लीस्ट पावरफुल होते हैं बट मोस्ट वाइडली यूज्ड होते हैं। आजकल हम क्या, हमारे हाथों में जो मोबाइल्स होते हैं, ठीक है जी, पोर्टेबल जो है हैंडलेट्स होते हैं या टैबलेट्स होते हैं, वो किसकी निशानी है, वो माइक्रो कंप्यूटर्स की जो है वो निशानी है। पोर्टेबल कंप्यूटर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टैबलेट्स मैंने आपको पहले बताया, और इसको पर्सनल कंप्यूटर्स भी कहते हैं। और माइक्रो, अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आए माइक्रो कंप्यूटर्स या पर्सनल कंप्यूटर, एक ही बात है वो कर रहे हैं। ठीक है जी। सो टुडेज पर्सनल कंप्यूटर्स मोर पावरफुल देन दोज ऑफ द पास्ट। एंड यहाँ पे क्या है, बहुत ही ईजीली टू यूज़ हो जाते हैं, और ये हम कहीं पे भी जाके यूज़ कर सकते हैं, इन स्कूल्स, इन होम्स, इन ऑफिसेज, इन एवरीवेयर्स। ठीक है। तो आजकल हम वाइडली यूज़ हम यही कर रहे हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स और पर्सनल कंप्यूटर्स। सेकंड कैटेगरी आती है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं,
सो यहाँ पे इट इज़ यूज इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन सच एज इंश्योरेंस कंपनीज बैंक्स वेयर मैनी पीपल frequently need to use the same data. In a traditional mainframe environment, each user accesses the mainframe's resources through a device called a टर्मिनल. देर आर टू टाइप्स ऑफ टर्मिनल्स, डम टर्मिनल एंड इंटेलिजेंट टर्मिनल. यहाँ पे उन्होंने बाइफिकेशंस की हुई हैं कि मेन फ्रेम्स में जो पहले हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे, आजकल के मेन फ्रेम्स बहुत एडवांस हो चुके हैं और लार्ज जो भी बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं, ब्लू चिप कंपनीज हैं, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे डाटा बहुत हैवी मेंटेन करते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, ठीक है जी, वहाँ पे ये यूज़ होते हैं. और यहाँ पे क्या है, जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं, लार्ज इंटरनल मेमोरी होती है टू स्टोर द लार्ज डाटा एंड कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर्स होती हैं. इसमें डिफरेंट जो रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर्स इसमें यूज़ करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में, उनकी कॉम्प्रिहेंसिव रेंज होती है, डाइवर्सिफाइड रेंज होती है. जैसे फिर आपने देखा होगा कि IBM जो है, IBM की सीरीज़ 370 और भी बहुत सारे मेन फ्रेम्स कंप्यूटर्स के जो है एग्जांपल्स होते हैं, जो बड़ी बड़ी, जैसे IBM 370 इट्स अ एग्जांपल ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर. तो ये कंप्यूटर्स आपने देखे हैं बड़ी बड़ी कंपनीज में, बैंकिंग्स में, इंश्योरेंस कंपनीज में. नेक्स्ट आता है हमारा मिनी कंप्यूटर्स. सो दीज आर दी स्मॉलर इन साइज़. मिनी कंप्यूटर्स जो है वो बिल्कुल स्मॉल साइज़ में होते हैं, बट इनकी कॉस्ट बहुत बहुत लो होती है, ठीक है जी. और यहाँ पे ये पहले क्यों डिज़ाइन, जो मिनी कंप्यूटर्स हैं पहले ये डिज़ाइन किए गए थे फॉर द पर्पस ऑफ इंजीनियरिंग एंड कैड. इंजीनियरिंग में आज से बहुत साल पहले ऐसे कंप्यूटर्स जो मिनी कंप्यूटर्स थे वो इंजीनियरिंग में यूज़ होते थे. इनकी जो डेवलपमेंट है क्यों की गई थी, इसकी ओरिजिनेशन टू यूज़ इन द इंजीनियरिंग पर्पसेस एंड एज वेल एज द कैड, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन. कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन में जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी वो यही मिनी कंप्यूटर्स की टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी. बट यहाँ पे आजकल नाउ अ डेज दे आर यूज्ड एज सेंट्रल कंप्यूटर्स और हब्स. आजकल ये सर्वर्स का काम कर रहे हैं, आजकल ये सेंट्रल कंप्यूटर का या हब का काम कर रहे हैं. अगर आपको क्वेश्चन आए कि कौन से कंप्यूटर्स जो हैं वो सेंट्रल कंप्यूटर्स कहलाते हैं, हब या फिर सर्वर कहलाते हैं, ठीक है जी, तो वो कौन से हैं, वो हैं मिनी कंप्यूटर्स, ठीक है जी. और पहले किस काम के लिए यूज़ होते थे, इंजीनियरिंग एंड कैड के काम में. और आजकल ये सर्वर और हब, एज अ सर्वर और हब यूज़ होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल IBM 17 है, ठीक है जी, HP 9000 है. ये सारे किसके एग्जांपल्स हैं, मिनी कंप्यूटर्स के, ठीक है जी. सो फॉर दिस रीजन्स मिनी कंप्यूटर्स आर ऑल्सो कॉल्ड दी मिड रेंज कंप्यूटर्स. इसका एक और नाम है मिड रेंज कंप्यूटर्स बिकॉज the capabilities of mini computers are somewhere between those of mainframes and personal computer. इसमें both capabilities जो है submerged हैं, mainframes की भी और क्या है, personal computers की भी. तो यहाँ पे क्या है, तभी इनको क्या बोलते हैं, mid range computers, ठीक है जी. नेक्स्ट कैटेगरी है सुपर कंप्यूटर. ये बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर होते हैं. सुपर कंप्यूटर एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत फास्ट होते हैं. इनकी प्रोसेसिंग स्पीड बिल्कुल बहुत बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं. और ये कौन यूज़ करता है, ये आप और हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये बड़े बड़े साइंटिस्ट और एक्सपर्टीज़ यूज़ करते हैं, ठीक है जी. और बड़े बड़े एनालिस्ट यूज़ करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल वेदर एनालिस्ट होते हैं, वेदर एनालाइजेशन होती है, वेदर फोरकास्टिंग होती है. वेदर फोरकास्टिंग के लिए जो साइंटिफिक कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं उनको क्या बोलते हैं, वो सुपर कंप्यूटर्स की कैटेगरी होती है, ठीक है जी. बहुत इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है. और ये क्या है, किन किन कामों में यूज़ होते हैं, वेदर फोरकास्टिंग के लिए, क्लाइमेट रिसर्च के लिए, मॉलिक्यूलर मॉडलिंग के लिए, ठीक है जी, यूज फॉर केमिकल कंपाउंड, एरोप्लेन सिमुलेशंस, न्यूक्लियर फ्यूजन रिसर्च. जो भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, साइंटिफिक एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है जी, उसमें कौन यूज़ होते हैं, सुपर कंप्यूटर्स. ये सिर्फ साइंटिस्ट यूज़ कर सकते हैं, एनालिस्ट यूज़ कर सकते हैं, एक्सपर्ट्स यूज़ कर सकते हैं. ये कोई आम लेमैन या हम और आपके जैसा जो है पर्सन यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है जी. फॉर इसके एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, PARAM, परम जो है वो भी सुपर कंप्यूटर का एक एग्जांपल है. क्रे 1 आया था, ये मैं आपको नाम बता रही हूँ, क्रे 1 और परम, ये सुपर कंप्यूटर्स जो हैं वो आजकल यूज़ हो रहे हैं. लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो आजकल यूज़ हो रही है सुपर कंप्यूटर्स. तो साइंटिफिक पर्पस के लिए कौन यूज़ होते हैं, सुपर कंप्यूटर्स. तो ये हमने 4 तरह के कैटेगरीज करी, किसके बेसिस के ऊपर, साइज एंड परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर. अब लास्ट कैटेगरी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स की कौन सी है, कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन दी पर्पस. अब पर्पस के बेस पे 2 तरह के कैटेगरीज है कंप्यूटर्स की, जनरल पर्पस कंप्यूटर्स एंड स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर्स. जो जनरल पर्पस कंप्यूटर्स हैं
दे आर यूज टू सॉल्व वराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स बाय चेंजिंग द इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोग्राम्स। ये हमें जनरली यूज़ करते हैं, कोई भी यूज़ कर सकता है, बिकॉज इनका नाम क्या है, जनरल पर्पस कंप्यूटर्स। जैसे फॉर एग्जांपल हम यूज़ कर सकते हैं इनको डाटाबेस मेंटेनेंस के लिए, बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस के लिए, कोई भी यूज़ कर सकता है। ठीक है जी। कंप्यूटर्स डिजाइन टू सॉल्व अ वराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स कैन यूज अ वराइटी ऑफ प्रोग्राम्स टू सॉल्व द kind of problems are different because the general purpose computer is not designed for a particular problem then compared to the special purpose computer speed is lower। यहाँ पे ये जनरल पर्पस है, कोई भी पर्पस इसमें जो है हम सॉल्व कर सकते हैं, डाटाबेस बना सकते हैं, कैलकुलेशंस कर सकते हैं, किसी भी पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो तभी इनकी जो स्पीड है ये थोड़ी सी स्लो होती है और ये जनरली हर कोई यूज़ कर लेता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स कौन से, जो जनरल पर्पस नहीं है लेकिन क्या है, दे आर डिजाइंड टू सॉल्व दी सिंगल एंड डेडिकेटेड टाइप ऑफ प्रॉब्लम। एक सिंगल या स्पेशल पर्पस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या स्पेशल पर्पसेस को करने के लिए जो है वो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स जो डिज़ाइन करे गए हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मिलिट्री में अलग तरह के मिलिट्री पर्पसेस के लिए अलग तरह के कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं, मेडिकल लाइन में अलग तरह के कंप्यूटर्स यूज़ हो सकते हैं, फैक्ट्री मशीनरी में अलग तरह के कंप्यूटर्स यूज़ हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल और भी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि स्पेशल पर्पस में जैसे फॉर एग्जांपल एयरक्राफ्ट लैंडिंग, एयरक्राफ्ट लैंडिंग या रडार्स के लिए जो है स्पेशल टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। वो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स की। या फिर मल्टीमीडिया कंप्यूटर्स आपने देखे होंगे, स्पेशली वो क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बने होते हैं, मल्टीमीडिया एंड ग्राफिक्स के लिए, एनिमेशंस के लिए, मल्टीमीडिया के लिए, ग्राफिक्स के लिए स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स बने होते हैं। ठीक है जी। तो वो क्या है, वो भी स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स हैं। एयरक्राफ्ट लैंडिंग के लिए जो मशीन्स हैं और वो भी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, वो भी इसी में आ जाती है। रडार्स लैंडिंग के लिए टेक्नोलॉजी वो यूज़ करते हैं, वो भी इसी में आ जाती है। तो जो कंप्यूटर्स को स्पेशल काम करने के लिए डिज़ाइन किए हुए हैं उनको क्या बोलते हैं, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। तो यहाँ पे क्या है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स आर फिनिश्ड। और लास्ट कैटेगरी में आज हम करेंगे, लास्ट में टॉपिक हम करेंगे कंप्यूटर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो 5 तरह की जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स हैं, यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो ये जनरेशन्स हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे और ये जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स पे भी जो है क्वेश्चन ज़रूर आता है। एक क्वेश्चन पक्का आज की पूरी प्रेजेंटेशन में से एक क्वेश्चन आपको पक्का आ सकता है, या तो टाइप्स के ऊपर या जनरेशन्स के ऊपर। ठीक है जी। तो जनरेशन्स 1 बाय 1 मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है, इनका जो इरा था दैट इज़ फ्रॉम 1940 टू 1956। ठीक है जी। और ये क्या है, साथ में आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं वैक्यूम ट्यूब्स। कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे, फर्स्ट जनरेशन, सबसे पहले ये डिज़ाइन हुए थे, सबसे पहले कंप्यूटर्स यही डिज़ाइन हुए थे, बिकॉज ये 40s टू 56 तो जो है वो डिज़ाइन हुए थे। और ये कौन सी टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती थी, वैक्यूम ट्यूब्स। और इसमें क्या है कि बैच प्रोसेसिंग सिस्टम, कौन सा सिस्टम, ध्यान से आप चाहे नोट कर ले साथ साथ में। इसकी मैं आपको जो है इसकी स्पेशलिटीज़ बता रही हूँ। फर्स्ट जनरेशन में क्या क्या यूज़ होता था, वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती थी। इनके ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से थे, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे इसमें। लैंग्वेज कौन सी यूज़ होती थी इस कंप्यूटर में, मशीन लेवल लैंग्वेज। इन कंप्यूटर्स में कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती थी, मशीन लेवल लैंग्वेज। और कौन कौन सी एप्लीकेशन ये के लिए यूज़ होते थे, यूज फॉर साइंटिफिक पर्पस, साइज वेरी लार्ज। ठीक है जी। ये स्पेशल पर्पसेस के लिए, बिकॉज नए नए कंप्यूटर्स जब यूज़ होते थे तो बिल्कुल साइंटिफिक पर्पसेस के लिए यूज़ होते थे, आम पर्पसेस के लिए कंप्यूटर्स बनाए ही नहीं गए थे तब फर्स्ट जनरेशन में। ठीक है जी। और इनका जो साइज़ है इतना लार्ज था कि ये एक कमरे में, एक रूम में एक कंप्यूटर आता था, इतना लार्ज कंप्यूटर होता था ये। ठीक है जी। बहुत एक्सपेंसिव होता था, बहुत ही इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता था, जनरेट लॉट ऑफ हीट। ठीक है जी। और ये क्या था, विच वॉज ऑफन यूज द कॉज ऑफ मॉल फंक्शन, इतनी इसमें गर्मी होती थी, इट जनरेट्स लॉट ऑफ हीट्स कि क्या है, कई बार माल फंक्शनिंग भी हो जाती थी। ठीक है जी। मशीन लेवल लैंग्वेज होती थी इसमें। ठीक है जी। इनपुट वाज बेस्ड ऑन पंच कार्ड्स एंड पेपर टेप एंड आउटपुट वाज डिस्प्लेड ऑन दी प्रिंट आउट्स। ठीक है जी। इनका एक जैसे फॉर एग्जांपल हम यूनिवैक और एनीएक कंप्यूटर्स जो हैं, ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के डिवाइसेस एज अ एग्जांपल मैंने आपको ली हुई है। लास्ट में देखिए UNIVAC
ENIAC, ये कंप्यूटर्स जो है वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स होते थे। तो कौन सी टेक्नोलॉजी? वैक्यूम ट्यूब्स, बैच प्रोसेसिंग सिस्टम होता था, मशीन लेवल लैंग्वेज होती थी, साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज़ होता था, साइज़ बहुत लार्ज होते थे, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम करता था, हीट ज़्यादा जनरेट करता था, मैग्नेटिक ड्रम्स यूज़ होते थे इसमें, ठीक है जी। और यहाँ पे क्या, पूरे एक एंटायर रूम में एक कंप्यूटर आता था, और ये क्या है, पंच कार्ड जो है इसमें इनपुट होते थे और आउटपुट जो है वो प्रिंट आउट्स में लेता था, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, ये 1956 टू 1963 ट्रांजिस्टर्स टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ होती थी। इसमें टाइम पीरियड क्या था, 56 टू 63। अब सेकंड जनरेशन, इसके बाद नए कंप्यूटर्स डिज़ाइन हो गए। ट्रांजिस्टर की टेक्नोलॉजी, पहले कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी? वैक्यूम ट्यूब्स की। इन कंप्यूटर्स में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, कौन सी यूज़ होती है? ट्रांजिस्टर्स, ठीक है जी। सो ट्रांजिस्टर्स रिप्लेस वैक्यूम ट्यूब्स अलाउइंग द कंप्यूटर्स टू बिकम स्मॉलर, faster, cheaper, more energy efficient and more reliable than the first generation computers. Still relied on the punch cards for input and printouts for the output. Second generation computers moved from scriptic binary machine language to symbolic or assembly languages which allowed programmers to specify instructions in the words. अब पहले मशीन लेवल लैंग्वेज यूज होती है, यहाँ पे कौन सी है सेकंड जनरेशन में? असेंबली लैंग्वेज यूज होती है, ठीक है जी। और यहाँ पे क्या है, जैसे फॉर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक कोबोल एंड फोर्ट्रान वर यूज्ड। यहाँ पे असेंबली लेवल लैंग्वेज भी यूज होती थी और हाई लेवल लैंग्वेज भी यूज होती थी, ठीक है जी। तो ये सारे हैं सेकंड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी आ गई? अब इंटीग्रेटेड सर्किट्स की। ये क्या ईरा था इसका? 1964 टू 71। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन में जो है आपका ट्रांजिस्टर यूज़ होता था, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ हो रहे हैं। ट्रांजिस्टर्स वर मिनी miniaturized and placed on silicon chips called semiconductors which increase the speed and efficiency of the computers. अब क्या है, धीरे धीरे क्या है, एफिशिएंसी आई जा रही है, इफेक्टिवनेस आई जा रही है, कंप्यूटर्स के साइज छोटे हो रहे हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे टेक्नोलॉजी नई नई यूज़ हो रही है, यूज्ड फॉर यहाँ पे जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स थे यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो यूज़ होती थी। और ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज़ होता था? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, हाई लेवल लैंग्वेज। तो यहाँ पे एप्लीकेशंस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स ये यूज़ होते थे। और कंप्यूटर्स आर फॉर द फर्स्ट टाइम बिकम एक्सेसिबल टू मास ऑडियंस बिकॉज दे वर स्मॉलर एंड चीपर देन दी प्रेडिसेसर्स। यहाँ पे आके ऑडियंस ने, हमारे जैसे लेमेन्स ने इनको यूज़ करना शुरू किया। और instead of punch cards and printouts, users interacted through keyboards and monitors and interfaced with an operating system which allowed the device to run many different applications at one time with a central program that monitored the memory. तो यहाँ पे आके जो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होना शुरू हो गया। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जहाँ पे हर कोई जो है कंप्यूटर को यूज़ करना शुरू कर दिया, ठीक है जी। और ये थर्ड जनरेशन यहाँ पे ख़त्म हो गई। नेक्स्ट क्या आ गया? फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, जिसको हम बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर्स। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स 1971 से शुरू हुए और आज तक अप टू प्रेजेंट हम यूज़ कर रहे हैं। वी आर यूजिंग दी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स, माइक्रो प्रोसेसर्स वर यूज्ड, ठीक है जी। यहाँ पे कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है? यहाँ पे लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर इसको बोलते हैं, वो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। सो यहाँ पे क्या है, as these computers become very powerful, they could be linked together to form networks which eventually led to the development of internet. यहाँ पे अब क्या है, इंटरनेट की डेवलपमेंट हुई जब कंप्यूटर्स को आपस में लिंकिंग करना शुरू हो गए कि डिफरेंट जो है टर्मिनल्स को, कंप्यूटर्स को लिंकिंग नेटवर्क के थ्रू नेटवर्कड कर दिया। यहाँ पे आके जो है इंटरनेट की टेक्नोलॉजी आई। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स ऑल्सो सॉ द डेवलपमेंट ऑफ GUIs, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस, द माउस एंड द हैंड हेल्ड डिवाइसेस। तो आजकल हम यही यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है? लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड प्रोसेसर, ठीक है जी। यहाँ पे क्या है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहा है? GUI इंटरफेस या फिर टाइम शेयरिंग, GUI या फिर टाइम शेयरिंग, ठीक है जी। और यहाँ पे कौन सी मॉडर्न लैंग्वेज यूज़ हो रही है? जैसे फॉर एग्जांपल पास्कल है, कोबोल है, ADA है, इस तरह की लैंग्वेज यूज़ होती हैं यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है कि बहुत ही, और यहाँ पे इंटरनेट की टेक्नोलॉजी जो है वो इंट्रोड्यूस हुई, ठीक है जी। और अब लास्ट में क्या है, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स, जो अभी क्या है बियॉन्ड, अब फ्यूचर में आएंगे। प्रेजेंट भी हैं, कुछ आ चुके हैं, प्रेजेंटली भी हम यूज़ कर रहे हैं कम तादाद पे, लेकिन जो है फ्यूचर
में ज़्यादा जो है उनको यूज़ करेंगे और इनको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये कौन सा ज़माना आएगा, 5th जनरेशन का, रोबोटिक्स का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर रोबोटिक्स का। ठीक है जी। यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे अल्ट्रा या फिर सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, SLSI जिसको बोलते हैं सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, या फिर ULSI या फिर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ होती है इसमें। यहाँ पे स्पीड अनलिमिटेड है, ठीक है, बहुत एडवांस हैं और इसमें बहुत ही मॉडर्नाइज्ड लैंग्वेज और एडवांस लैंग्वेज यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल पाइथन, आजकल कौन सी चल रही है, पाइथन, वो इसी में हम 5th जनरेशन में यूज़ कर रहे हैं। आगे जाके और भी लैंग्वेजेस डेवलप हो जाएंगी जो बिल्कुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड होंगी। ठीक है जी। सो यहाँ पे क्या है, अब हमने आपको 5 जनरेशन्स बता दी। फर्स्ट जनरेशन में क्या था, वैक्यूम ट्यूब्स, बैच प्रोसेसिंग सिस्टम, मशीन लेवल लैंग्वेज, ठीक है जी, और वो साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज़ होते थे। ठीक है जी। सेकंड जनरेशन में क्या था, ट्रांजिस्टर यूज़ होते थे, टाइम शेयरिंग सिस्टम और मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता था। इसमें असेंबली लैंग्वेज होती थी और यूज़ फॉर कमर्शियल पर्पस होते थे। थर्ड जनरेशन में क्या किया हमने, इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज़ होते थे, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता था, हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ होता था और डाटाबेस सिस्टम, जैसे फॉर एग्जांपल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS वगैरह, वो इसमें यूज़ होते थे। फोर्थ जनरेशन में क्या होता था, कौन सी टेक्नोलॉजी, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यूज़ होते थे। ठीक है। टाइम शेयरिंग एंड GUI इंटरफेस यूज़ होता था, पास्कल या फिर और मॉडर्न लैंग्वेज यूज़ होती थी। और यहाँ पे क्या है कि जैसे इंटेल जो है, इंटेल या मैकिनतोश यूज़ होते थे। फिफ्थ जनरेशन में क्या होता था कि यहाँ पे और ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जिसको हम ULSI बोलते हैं, या फिर सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जिसको हम बोलते हैं SLSI। ये इंटीग्रेशन जो है, ये टेक्नोलॉजी यूज़ होती है यहाँ पे और अनलिमिटेड स्पीड है, यहाँ पे बहुत एडवांस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स का ज़माना है। और यहाँ पे क्या है, हर तरह की जो चीज़ है, नैनो टेक्नोलॉजी है और बहुत ज़्यादा जो है ये डिवाइसेस जो हैं वो बहुत ही कैपेबल ऑफ जो है सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन और लर्निंग के कैपेबल है। और ये टेक्नोलॉजी अभी आगे फर्दर और भी एस्टैब्लिश और फ्लरिश होएगी। ठीक है। यहाँ तक आज हमने क्या कर लिया, डिफरेंट जनरेशन्स कर ली कंप्यूटर्स की, टाइप्स कर लिए कंप्यूटर्स के, सॉफ्टवेयर कर लिया, हार्ड सॉफ्टवेयर की टाइप्स कर ली, हार्डवेयर कर लिया, सब कुछ कर लिया। दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ कंप्यूटर बेसिक्स। ठीक है जी। तो इस चैनल पे सीटेट पीटेट KVS NVS की क्लासेस भी चल रही हैं साइमल्टेनियसली और इस चैनल पे UGC की क्लासेस भी चल रही हैं साइमल्टेनियसली। हर दिन जो है हम एक वीडियो UGC की लेके आ रहे हैं और एक वीडियो जो है सीटेट पीटेट KVS NVS की लेके आ रहे हैं। ठीक है जी। सारे के सारे एस्पिरेंट्स जो हैं वो ऑल ओवर इंडिया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्री ऑफ कॉस्ट 100% कंप्लीट कोचिंग्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और हम धीरे धीरे जो है क्रोनोलॉजिकली आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। सो सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस चैनल, like this channel and press the bell icon for the further notifications of our new videos. सो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगी कंप्यूटर बेसिक्स पार्ट 3, जिसमें हम और भी ज़्यादा कंप्यूटर्स को डिटेल में और करेंगे। एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय फॉर नाउ।